Hello student, very warm welcome on my channel. I Jasmine Faraz welcome you again on my channel. Last video lecture already we have seen chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. In that we have seen meaning, definition, objectives, importance of bookkeeping, and also we see difference between bookkeeping and accountancy. If you have not watched my video, then please first watch that video and then see this video. Few student demand me teach in Hindi as well as English, so I will try to make a combination of these two language. So now we'll start the meaning and definition of accountancy. Already we have seen what is a bookkeeping. Bookkeeping means is a recording the transaction in systematically manner. We have to keep the record day to day activities. So this is a bookkeeping. Now we'll move to the further advanced step, that is a accountancy. So let's start. Meaning and definition of accountancy. Bookkeeping is a part of accounting. So it is a primary stage. Already we have seen difference in bookkeeping and accountancy. They have given the bookkeeping is primary stage and accountancy is a secondary higher advanced stage. Okay. So again I am telling, if you are not watched my first video, first please watch that video, then only you will come to know. Now we'll move to the next. It is the process of recording transaction in the books of account. Of course, we have to record as per rules and regulation. Accountancy is a practice of recording, classifying, reporting of business transaction for a business. हमने बुक कीपिंग में क्या देखा था कि जस्ट हमको रिकॉर्ड रखना है, जो जूनियर स्टाफ भी क्या करता था वो रिकॉर्ड रख सकता था, बट अकाउंटेंसी के लिए हमें सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है. So they only record, classify, analyze and interpret the business transaction. We'll see the proper definition. Professor Robert Anthony Watt said, nearly every business enterprises has accounting system. It means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about the business transaction. Already this all we have seen last video. When we see the difference between bookkeeping and accountancy, they have given clear cut. Bookkeeping is a primary step, simple recording the transaction. This can be done by the junior staff, but in accountancy this is a secondary stage, higher advanced stage. Here we have to not only record the transaction, but we have to interpret, analyze the account, and this is done by the senior account. Now basically there are three accounting system. हम कौन से account system follow करेंगे वो हम देखते हैं. Three accounting system है. First system is a cash basis, second is a accrual mercantile basis, and third is a mixed or hybrid basis. But basically ये दो methods हम देखते हैं क्योंकि mixed and hybrid basis is prohibited in our Indian law. तो ये दो ही फॉलो करते हैं हमारे बिजनेसमैन. अब ये देखते हैं कि क्या है ये कैश बेसिस. सो सी हियर, नाम पे से ही हमें पता चलता है कैश बेसिस, दैट मीन्स अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मंथ अप्रैल मंथ में सैलरी दी है तो हमें पेड की है ऑलरेडी, तो वो हमें रिकॉर्ड रखना है. अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है बैंक से या कमीशन किसी से रिसीव किया है तो ये एक्चुअल बेसिस है, तो ये दोनों की हमें एंट्री रखनी है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्चुअल कैश रिसीट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट का ही रिकॉर्ड रखना होता है. ठीक है. अगर हमने फॉर एग्जांपल परचेज अ गुड्स ऑन अ कैश बेसिस, तो हमने यहाँ पे कैश बेसिस से परचेस किया है, इमीडिएटली पेमेंट किया है, तो ये ट्रांजैक्शन हम इस अकाउंटिंग सिस्टम में लिखेंगे. ओके. नाउ second method is accrual or mercantile. That means under accrual basis of accounting, revenue whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period. Same expenses incurred whether paid or not are recorded. पहले मेथड में हमने देखा था जो एक्चुअल हमने कैश पेड किया या रिसीव्ड किया वही ट्रांजैक्शन हम उस अकाउंटिंग सिस्टम में लिखते थे. बट इस मेथड में हम लोग इन फ्यूचर, मतलब ये साल का इनकम है लेकिन वो रिसीव्ड होने वाला है फ्यूचर में, तो भी हमें वो इनकम लिखना है. आई गिव द एग्जांपल्स हियर.
our accounting year always start from April. Now you have to remember that कि हमारा कैलेंडर ईयर भले जनवरी से स्टार्ट होता होगा लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर ऑलवेज स्टार्ट विद द अप्रैल. सो एज्यूम दैट अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल 19 से स्टार्ट हो चुका है. So we have a month April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, and March. So our accounting year start with the April and always end with the March. If you calculate this, if you count this, it's a 12 months आता है. ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर हमारा 12 मंथ्स का होता है, स्टार्ट विद अप्रैल एंड विद द मार्च. अब कुछ कुछ कंपनी में सैलरी अप्रैल की सैलरी में मई में होती है, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई, ऐसे होते होते जनवरी की सैलरी मार्च में, सॉरी फेब्रुअरी में, एंड फेब्रुअरी की सैलरी मार्च में. तो यहीं पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है. बट मार्च की सैलरी होगी अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में. बट पे भले ही ओनर अप्रैल में करेगा लेकिन उसकी ड्यू डेट कब है, मार्च में ही है, क्योंकि वो सैलरी मार्च की है. तो भले हम पे अप्रैल में करेंगे लेकिन उसका रिकॉर्ड हम यही अकाउंटिंग ईयर में लिखेंगे. हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, अप्रैल 2019 टू मार्च 2020. So though he is going to pay in April months, but still that owner will write that salary in this accounting year. Okay, इसे कहते हैं income earned whether received or not. सेम एक्सपेंसेस भी अगर हमने पेड अप्रैल में किया है लेकिन वो हुआ तो मार्च मंथ में है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे. सो भले वो एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड हो या पेड हो या ना हो, वी हैव टू राइट दिस अकाउंटिंग ईयर. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है. फिर से एक बार रिपीट वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा. एंड डोंट वरी, दिस इज अ सेकंड लेक्चर ओनली. डेफिनेटली यू विल गेट लिटिल कंफ्यूज, बट जैसे जैसे हम आगे आगे फर्दर मूव होगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. ओके, सो नाउ विल मूव टू द थर्ड अकाउंटिंग ईयर, मिक्स्ड और हाइब्रिड. यहाँ पे दोनों तरीके के लिया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूएड बेसिस, लेकिन ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है. Okay, so basically these three are the accounting procedure. Now we'll move to the next, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स इन बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटेंसी. बट जो इंफॉर्मेशन लिखोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले वो रिलायबल होना चाहिए, भरोसे के काबिल होना चाहिए. नेक्स्ट रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेटेड विद ट्रांजैक्शन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लिखे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, तो बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो अंडरस्टैंड होना चाहिए. कोई अगर बाहर की थर्ड पार्टी अगर देखती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो उसको समझ में आनी चाहिए. जैसे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी वी हैव सीन द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, दिस इज यूजफुल फॉर द ओनर. देन वी हैव सीन इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, कस्टमर्स. सो ये इंफॉर्मेशन सबके लिए यूजफुल है, तो ये समझ में आनी चाहिए. अगर कस्टमर ने भी डिमांड किया कि मुझे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन, बट वो उसे समझ में आनी चाहिए. देन कंपैरेबिलिटी, कंपैरिजन इजी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल बजाज कंपनी, ही हैज अ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. सो हर ब्रांचेस में एक ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक ही अकाउंटिंग मेथड, सिस्टम फॉलो होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन मेक द कंपैरिजन बिटवीन ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2. अगर हर ब्रांच में अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज की गई तो वी कैन नॉट मेक द कंपैरिजन. तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, ये सब कुछ एप्लीकेबल इक्वल होने चाहिए. सो दिस आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे के काबिल होनी चाहिए, रिलीवेंस होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड बिजनेस से ही होनी चाहिए, अंडरस्टैंड इजीली होना चाहिए, एंड कंपैरिजन हमें सबको करना आना चाहिए. ओके, now we'll move to the most important part, that is the terminology. Now most of the you heard these words in different way, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. सो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन. It's a simple transaction, means exchange of goods and service between two person or parties.
for monies or money's worth is known as a transaction. अगर मैं अपने वर्ड में कहना चाहूँ तो buying and selling is called transaction. But buying and selling barter system में नहीं होनी चाहिए. What they have given nowadays तो digital का word है ना, online transaction. So now exchange of goods and service between two person or two parties for money or money's worth is known as a transaction. Means buying and selling is called transaction. मतलब हमने बहुत बार buying and selling word सुना होगा but transaction नहीं सुना होगा. So in buying and selling को हम accounting language में कहेंगे उसको transaction. Okay, I hope समझ में आया है. Now in transaction there are types of transaction, basically two types of transaction, monetary transaction and non monetary transaction. अब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में भी दो पार्ट है. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बेसिस पे हुई है या क्रेडिट बेसिस पे हुई है जहां पे मनी और मनीज वर्थ, ओके यहाँ पे वर्ड आना चाहिए मनीज और मनीज वर्थ, उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. मैंने पहले वीडियो में ट्रांजैक्शन एक दिया है, परचेज अ चॉकलेट फ्रॉम द सेलर is called monetary transaction, and giving chocolate from our parents as a love or affection, that is non monetary transaction. जहाँ पे पैसे का काम होता है उसे हम monetary transaction कहते हैं, जहाँ पे पैसे का काम नहीं होता है उसे हम नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं. ओके, इन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में भी दो पार्ट है. one is cash transaction, another is credit transaction. The transaction is done only for the cash, that is called cash transaction, and credit transaction means the transaction done on a credit basis. That means बहुत बार देखो हम लोग फ्रिज, फॉर एग्जांपल फ्रिज खरीदना है, so we go to the shop, क्रोमा सेल्स में गए या विजय सेल्स में, and we purchase the fridge for rupees 25,000 and immediately we pay the 25,000. This is called cash transaction. But sometime what we do, we purchase on EMI basis, installment पे लेते हैं हम लोग, बजाज फाइनेंस से लेते हैं या हमारे क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं. So we will pay this 25,000 later by installment, half 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 ऐसे करके हम लोग installment में क्या करेंगे, पे करेंगे. तो this is called credit transaction. Okay, so we have two types of transaction, basically monetary transaction and non monetary transaction. In monetary transaction again there are two transaction, cash transaction and credit transaction. Now I give the example cash transaction. बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, पेइंग द सैलरी, एंड सेकेंड परचेज गुड्स ऑन अ कैश बेसिस. देखो सैलरी इमीडिएटली हमें पे करना होती है, पूरी कैश बेसिस पे होती है. हाँ मे भी चेक से दे सकते हैं बट दैट इज ऑल्सो कैश ट्रांजैक्शन. इमीडिएटली वी पे, spot payment is done. Purchase good on cash basis, just I have given the example of fridge. We purchase the goods, goods means a product. We'll see this later goods का meaning क्या होता है. So here we can take purchase a fridge on a cash basis. This is also example of cash transaction. If we move to the credit transaction, so what will be the example, purchase a goods or purchase a product on a credit basis, सोल्ड मशीनरी ऑन अ क्रेडिट बेसिस. देखो हम हमारी पुरानी मशीनरी भी सोल्ड करते हैं लेकिन सामने वाली पार्टी के पास अगर उतनी कैश नहीं होगी, सो व्हाट ही सेड, आई विल पे दिस अमाउंट हाफ हाफ or by EMI. So this credit basis. So this is known as a credit transaction. Now monetary transaction, it is comes barter system, but nowadays we don't use barter system. पुराने जमाने में होता था barter system. That means अगर आपने किसी से राइस लिया होगा 10 kg तो आप उसके बदले उसको 10 kg गेहूं दोगे या और कुछ आपके पास होगा वो आप दोगे. So there is no transaction of cash or money's worth. This is called non-monetary transaction. Okay, so these are the transaction. Simple meaning, buying and selling between two or parties for monies or money's worth. Okay, money's worth means क्या, by check, by credit card, this is called money's worth. Now we'll move to the next terminology. Non-monetary already I have explained, the transaction which does not involve any exchange of money or money's worth. This is called non-monetary transaction. Means one thing against another thing. एक चीज के बदले हम दूसरी चीज उसे देते हैं. मेरे पास
क्लोथ्स है बहुत सारे, तो मैंने क्लोथ्स दिए और उसके बदले राइस खरीदा। तो ये पहले के जमाने में होता था। अब यहाँ पे हमारे nowadays ये अब नहीं है। ओके, now we'll move to the further. Now entry, this is the next terminology. टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। So entry, that means recording of business transaction in proper form or method in the books is called entry. For example, आप अकाउंटेंट हो और अगर आपने किसी को पेमेंट किया है, पेड ₹20,000 टू मिस्टर अशोक, सो ये एंट्री आपको कहीं तो लिखना हो गया एज अकाउंटेंट। सो राइटिंग द एंट्री इन द बुक्स इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड एंट्री। तो सिंपल, आपकी मम्मी जो डायरी में लिखती है कि आज मैंने काम वाली बाई को 200 रुपीज दिए, आज मैंने दूध वाले का बिल पे किया ₹500, आज मैंने ग्रोसरी से परचेज किया ₹1000। सो कीपिंग द रिकॉर्ड इन अ प्रॉपर मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। ओके, अब ये एंट्री कैसे की जाती है, ये लिखने का मेथड क्या है, ये हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट, नरेशन। नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एंट्री का क्या कही थी कि पेड ₹20,000 टू मिस्टर अशोक। सो हम ये एंट्री लिखेंगे और ब्रीफली उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नरेशन। जैसे मम्मी लिखती है पेड 500 टू मिस्टर एक्स वाई जेड, तो क्यों पेड किया वो भी लिखती है कि यस आई परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड ग्रोसरी। सो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पापा को भी देती है, हाँ मैंने खरीदी की, इसके इसके लिए खरीदी की। सो एक्सप्लेनेशन वी नीड टू राइट, बिकॉज हर एंट्री हमें याद नहीं रहती है हमने क्यों पेड किया मिस्टर अशोक को। तो क्यों पेड किया, तो हाँ हमने उनसे कुछ तो परचेज किया होगा इसलिए हमने पेड किया। सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद बी। ठीक है, ये दोनों हमें जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एंट्री पास करेंगे, तब ये काम आएगा। ओके, सो नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स व्हेन वी राइट द एंट्री पेड टू मिस्टर अशोक, immediately we have to write in bracket we paid for परचेसिंग अ स्टेशनरी, हमने उससे स्टेशनरी खरीदी थी इसलिए उसको पेमेंट किया। दिस इज अ एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड्स। नाउ इफ यू पुट एस, तो मीनिंग चेंज होता है। इफ यू रिमूव द एस, इट इज अ गुड, मीन्स बेस्ट, बेटर, वो गुड। लेकिन अगर हमने एस पुट किया तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका मीनिंग चेंज होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? द टर्म गुड्स रिफर टू द मर्केंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मर्केंटाइज मतलब सेलर बेचता है और उसे पैसे कमाता है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, ये फर्नीचर सेलर के लिए गुड्स है। अगर कोई पर्सन है वो फिश मार्केट में फिश बेचता है, तो उसके लिए फिश गुड्स है, बिकॉज ही इज गेटिंग द मनी बाय सेलिंग दीज गुड्स। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन से वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर के लिए क्या होगा गुड्स? ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स। फ्रूट सेलर के लिए क्या होगा गुड्स? ऑफ कोर्स फ्रूट्स, बिकॉज ही इज सेलिंग द फ्रूट्स एंड ही इज गेटिंग द इनकम। गोल्ड स्मिथ के लिए क्या होगा? ऑफ कोर्स गोल्ड, because he is selling the gold to the customer and against that he is getting the income। तो जिस चीज पे हमें रोजी रोटी मिलती है वो हर चीज वो दुकानदार के लिए क्या होती है? गुड्स होती है। अब बुक सेलर के लिए देखो, बुक सेलर के लिए, आपके लिए बुक्स ये गुड्स नहीं होगी, वो तो आप आपके पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन जिनकी बुक सेलर है, बड़ी दुकान है, वो अगर गुड्स सेल करते हैं, बुक सेल करते हैं, तो बुक्स उनके लिए क्या है? गुड्स है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। दिस आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न द प्रॉफिट। Okay, now one example is giving, suppose your mummy is having a good gold necklace। ठीक है, gold necklace है, now she want to sell in the market because she need a money urgent, so she sell that necklace to the goldsmith। So is that necklace is a goods for your mother? Of course not, because she is not selling
it for the earning the profit or for the purpose of selling. She needs the cash immediately. That is why she sell the that necklace. मजबूरी है इसलिए उसने वो नेकलेस सेल किया है. तो उसके लिए नेकलेस ये गुड्स नहीं है. लेकिन अगर यही हम एग्जाम्पल उल्टा लेंगे, अगर हम ज्वेलरी शॉप में गए और वहां से दुकानदार गोल्ड स्मिथ ने उसका नेकलेस बेचा, तो ये नेकलेस वो गोल्ड स्मिथ के लिए क्या होगा, गुड्स होगा. ओके. अनदर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट में जाते हैं और वेजिटेबल परचेज करते हैं, तो वेजिटेबल्स हमारे लिए गुड्स नहीं है. ठीक है. लेकिन वो जो वेजिटेबल सेलर है, उसने हमें बेचा है वो वेजिटेबल्स, तो उसको तो पैसे मिले, उसकी तो रोजी रोटी है उस पे. तो वेजिटेबल्स उसके लिए क्या होगे, गुड्स होगी. ओके. नेक्स्ट वन, we'll move to the further. Capital, this is most important terminology. The total amount invested into the business by the owner is called capital. For example, if you want to start a business, so immediately you cannot start your business. You need cash, you need machinery, you need workers, and for this all things you need a amount, you need a cash. So whatever you are investing into the business, that is all called as a capital. Understood? So what they have given, the total amount invested into the business by the owner is called capital. For example, if you want to open a shop, so for that you have to first purchase office. ठीक है, वो शॉप के लिए शॉप परचेस करना होगा. देन फॉर शॉप वी नीड अ फर्नीचर, फर्नीचर भी तो चाहिए हमें शॉप के अंदर. देन वी नीड अ मटेरियल, क्या हमें सेल करना है, इसके लिए हमें सब क्या करना होता है, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं. दिस cash, this amount is called as a capital. So here they have given formula, capital is equal to asset minus liability. but अभी तक हमने asset and liability पढ़ी नहीं है, तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा. सिंपल मीनिंग बताती हूँ. आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सब मिला के बिजनेस प्रॉपर्टी 10 लाख है, और उसके लिए आपने लोन लिया है बैंक से, कुछ फ्रेंड से 3 लाख. तो आपने एक्चुअल आपके जेब से पैसा कितना इन्वेस्ट किया, सो आपकी एसेट कितनी थी, 10 लाख माइनस लायबिलिटी 3 लाख, तो आपके जेब से एक्चुअल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट हो गई, 7 लाख. दिस इज कॉल्ड कैपिटल. ओके. सो आई होप आपको समझ में आया है. एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस. लायबिलिटी मतलब लोन. क्यों ये बिजनेस की कैपिटल लायबिलिटी होती है, क्यों ये लोन होता है, क्योंकि जब भी हमारा बिजनेस क्लोज होगा, तो ओनर वो पैसे वापस लेता है. तो दिस इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. ओके. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है. हमें जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे एसेट एंड लायबिलिटी, यू विल कम टू नो. सो अभी सिर्फ इतना ही समझो कि कैपिटल मीन्स जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल. Next is drawings. See, the amount of cash or value of goods, asset withdrawn from the business by the owner for personal use is called drawing. Now, for example, you are having a one small business, ठीक है, एंड आपके पास 10,000 कैश है, बिजनेस की कैश है. सर्टनली योर ब्रदर केम एंड ही सेड कि भाई मुझे 2,000 चाहिए, मुझे अपनी कॉलेज की फी पे करनी है. सो व्हाट यू डू, इमीडिएटली वो 10,000 जो बिजनेस की कैश थी, उसमें से 10,000 में से 2,000 आपने आपके भाई को पे की कि ये ले ले और कॉलेज की फी भर दे. सो व्हाट यू डू, you withdraw the cash from the business cash for personal use. अब ये जो आपने आपके भाई को दिया है, ये पर्सनल यूज के लिए तो कैश दिया है. सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग. अनदर एग्जाम्पल, यू हैव अ बुटीक. आपके पास बहुत डिजाइनर ड्रेसेस है, और आज आपको ही कोई अपने फ्रेंड के शादी में जाना है एंड यू नीड अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो आप क्या कहोगे, मैं अपने ही बुटीक में जाती हूँ और अपने लिए एक ड्रेस लेती हूँ. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक ड्रेस फ्रॉम बुटीक without paying the money, so for a personal use. So what do, you withdraw the goods from your business for your personal use is called as a
drawing. Now second example I can give. Suppose again we'll take the same example. You have a boutique. Your friend came and she told कि I want to purchase a beautiful dress for family function. So she purchased the beautiful dress for rupees 2000. She immediately paid. So this is not a drawing because यहाँ पे आपको पैसे मिले हैं. आपने यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं किया है. पहला वाला जो एग्जाम्पल था जो खुद ने आपने आपके लिए दुकान आपके खुद के बुटीक में गए एक ड्रेस सिलेक्ट किया और आपके फैमिली फंक्शन में पहन लिया. सो दैट विल बी अ ड्रॉइंग. ओके सो आई होप आपको ड्राइंग एंड कैपिटल समझ में आया होगा. सो कैपिटल एंड ड्राइंग ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर. कैपिटल मीन्स investing the amount into the business for a business purpose, and drawing means withdraw the cash or goods from the business for a personal use are called drawing. Example here again given, proprietor pay college fee of his son or pay medical expenses, mobile bills from the business. वो खुद के लिए जो भी खर्चा करता है वो होता है उसका drawing. Now we'll move to the next, debtors. A person who has to pay to the business for getting a goods and service on a credit is known as a debtors. सिंपल एग्जाम्पल, डेटर्स मतलब कस्टमर. जिस पर्सन को हम गुड्स क्रेडिट पे उधार देते हैं और वो पर्सन हमें बाद में पे करने वाला है. ऐसे होता है ना, जैसे सिंपल एग्जाम्पल, हम दूध वालों से दूध खरीदते पूरे महीने का, तो वो रोज हमें बैग दूध की बैग ड्रॉप करता है हमारे डोर पे, बट रोज वो पैसे नहीं लेता है. क्या होता है, उसे हम लोग एंड ऑफ द मंथ पूरे महीने का बिल उसे हम पे करते हैं. ठीक है. सो फॉर he that milk seller, we are the debtors because a person who has to pay to the business for getting goods and service on a credit is known as a debtor. मतलब ऐसा पर्सन जो पे करता है लेटर उसे कहते हैं डेटर्स. अंडरस्टूड. सो सिंपल एग्जांपल, कस्टमर, दुकानदार के लिए कस्टमर ही डेटर्स होता है क्योंकि वो खरीदता है उधारी पे, लेकिन बाद में कुछ सैलरी होने के बाद कुछ 15 दिनों के बाद या एक महीने के बाद फिर से वो पैसे उसे वापस करता है. ठीक है. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जस्ट वी हैव सीन द ट्रांजैक्शन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वी हैव सीन कैश बेसिस एंड क्रेडिट बेसिस. तो ये क्रेडिट बेसिस वाला एग्जांपल है. When the seller sold the goods to the customer on a credit basis, that time that customer become debtors of that seller. ठीक है. अब सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. एज्यूम करो कि मिस्टर अशोक purchase the goods from Mr. Kishore on a credit basis. सो किशोर के लिए मिस्टर अशोक कौन होंगे, डेटर्स होंगे, क्योंकि अशोक बाद में वो पैसे मिस्टर किशोर को वापस करने वाले हैं. अंडरस्टूड. सो ऑलवेज कस्टमर इज अ डेटर्स. नाउ विल सी द क्रेडिटर्स. सेम एग्जांपल विल सी. क्रेडिटर्स कौन होता है, तो सेलर होता है. अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मिस्टर अशोक परचेज द गुड्स फ्रॉम मिस्टर किशोर ऑन क्रेडिट बेसिस. तो किशोर के लिए अशोक ये कस्टमर थे, मतलब डेटर्स थे, तो अशोक के लिए किशोर कौन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे. सी अ पर्सन टू whom business has to pay for getting the goods or service on a credit is known as a creditors. A creditor is a person to whom business own a money. For example, seller. So अशोक के लिए किशोर ये क्रेडिटर्स है और किशोर के लिए अशोक ये डेटर्स है. ये एग्जाम्पल आप याद रखिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. Okay, so we'll move to the further. Bad debts. Now in name only they said bad. An irrecoverable amount from the debtors is known as a bad debt. Just I have given the example, Kishore and Ashoka. Ashok purchased the goods from Kishore on credit basis. किशोर ने बिलीव किया कि यस अशोक विल कम एंड ही विल पे द अमाउंट, बट ऐसे कुछ हो गया अनफॉर्चुनेटली कि अशोक तो पैसे लौटाने आया ही नहीं किशोर के पास.
तो ऐसे वो जो भी अमाउंट रहेगी, फॉर एग्जाम्पल 5000, अशोक 5000 देने वाला था किशोर को, लेकिन अशोक तो पैसे देने आया ही नहीं, तो 5000 जो अमाउंट होगी उसे किशोर क्या कहलाएगा, बैड डेट्स। एन इनरिकवरेबल अमाउंट, इनरिकवरेबल मतलब क्या, जो रिकवर नहीं हो रही है फ्रॉम अ डेटर्स, मतलब डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर, इज नोन एज अ बैड डेट्स। तो ऐसे बहुत बार बिजनेस में बैड डेट्स होता है। सपोज मैं बिजनेस वूमन हूँ और मैंने 10 पीपल्स को क्रेडिट बेसिस पे माल दिया है, होलसेल के इसमें तो ऐसे ही चलता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही चलता है, क्योंकि बहुत लाखों में परचेस करते हैं दुकानदार, रिटेलर्स, होलसेलर से, तो इमिडिएटली वो पे नहीं करते हैं, तो दे जस्ट कीप प्रॉमिस कि यस विल पे लेटर। तो मैंने ऐसे 10 लोगों को पे किया, तो 10 लोगों में से मे भी ऐसे हो सकता है कि एक दो कस्टमर मुझे वापस पैसे नहीं दे। सो ये जो अमाउंट का मुझे घाटा होगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स। आई होप आपको इजी जा रहा है। बार बार आप वीडियो पॉज कीजिए, डेफिनेशन पढ़िए, बुक में चेक कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। So today we'll stop here. Just listen this video again and again. You will come to know. हम slowly जाएंगे ताकि आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगी। देन सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।